Hello friends, welcome to Moon Child Chemistry. Today we are going to learn about the first chapter. This chapter is atomic structure and the periodic table, and I am using this a reference book which is very famous for inorganic chemistry studies, and the book is name is Concise Inorganic Chemistry, and the well-known author J.D. Lee. So here we begin with this first chapter. This is the basic chapter, or we could say that this first chapter is will help you to understand the basic concept of chemistry. So here we begins. If you have any query, please comment me in the comment box, and please subscribe to my channel. Here we get started. Now here I have highlighted some important points so we don't make any delay and just only try to understand the main point which I highlighted. And this is the PDF form. You could also download this PDF in a PDF from Google search. Okay, so here we start. The atom as a nucleus with the orbital electron. All atoms consist of a central nucleus surrounded by one or more orbital electron. The nucleus always contains the proton, and all nuclei heavier than the hydrogen contain neutrons. 2. The proton and neutron together made up most of the mass of the atoms. Both protons and neutrons are particles of unit mass. But a proton has one positive charge and neutron is electrically neutral, that is carries no charge. Thus the nucleus is always positively charged. Let me remind you that this is the lecture is bilingual in language in which I will explain you this reading lecture in both Hindi and English. So let me explain you in Hindi कि इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि एटम में बहुत सारे एटम में न्यूक्लियस सेंट्रल में रहता है और सराउंडेड रहता है एक से ज़्यादा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से. न्यूक्लियस जो है उसमें हमेशा प्रोटॉन्स रहता है और सभी न्यूक्लियाई जो है हेवियर रहता है हाइड्रोजन से, जिसमें न्यूट्रॉन रहता है. अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है एक साथ मिलकर मास ऑफ द एटम बनाते हैं. दोनों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसमें यूनिट मास है, लेकिन प्रोटॉन जो है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और उसमें कोई चार्जेस नहीं है. इसलिए न्यूक्लियस जो है हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहता है. वाई इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज? बिकॉज न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है. प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल चार्ज रहता है. ठीक है, उसमें मास रहता है पर न्यूट्रल चार्ज नहीं रहता है. ठीक है, the number of positive charge on the nucleus is exactly balanced by an equal number of orbital electrons, each of which carries one negative charge. Electrons are relatively lightly above 1/1834. यहाँ पे एक्चुअली 1/1834 है, 1/1834 है. ठीक है, the mass of proton, the 103 or so element at present known are all built up from these three fundamental particles in a simple way. ठीक है, सो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है इस न्यूक्लियस में वो एग्जैक्टली बैलेंस होता है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. ठीक है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बैलेंस होता है, एग्जैक्टली इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑर्बिटल के अंदर. ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा 1/1834 मास ऑफ प्रोटॉन से काफ़ी कम है. सो मतलब इट्स सो मच स्मॉलर देन प्रोटॉन. देन द 103 और सो एलिमेंट एट प्रेजेंट नोन आर ऑल बिल्ड अप फ्रॉम दिस थ्री फंडामेंटल पार्टिकल इन सिंपल वे. ठीक है, 103 एटॉमिक नंबर भी रहेगा तो न्यूक्लियस में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा और न्यूट्रॉन भी रहेगा,
पर 103 प्रोटॉन है तो 103 इलेक्ट्रॉन भी है, तो बैलेंस होता है, उसकी वजह से न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एंड मोस्ट सिंपल एलिमेंट. इट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस containing one proton and together has one positive charge which is balanced by one negatively charged orbital electron. The second element is helium. The nucleus contains two protons and so has a large charge of +2. The nuclear charge of +2 is balanced by two negatively charged orbital electrons. The nucleus also contains two neutrons which minimize the repulsion between the proton in the nucleus and increase the mass of the atom. All the nuclei heavier than hydrogen contain neutrons, but the neutron present cannot be predicted reliably. हाइड्रोजन जो है, जो सब फर्स्ट एलिमेंट है, उसमें न्यूक्लियस रहता है, उसमें प्रोटॉन भी रहता है, पॉजिटिवली चार्ज रहता है, और ये बैलेंस होता है वन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से. सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट जो हमारा हीलियम है, उसमें दो प्रोटॉन्स रहता है, हीलियम दो प्रोटॉन्स रहता है न्यूक्लियस में, तो +2 चार्ज रहता है, तो वो भी बैलेंस हो जाता है दो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से. ठीक है, ठीक है. और जितने भी द न्यूक्लियस ऑल्सो हाँ, जितने भी सभी न्यूक्लियस जो प्रोटॉन से, जो हाइड्रोजन से भी ज़्यादा हेवी है, जिसमें न्यूट्रॉन है, ठीक है, उनमें न्यूट्रॉन का नंबर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है. ठीक है. This pattern is repeatable for the rest of the element. Element 3 lithium has 3 protons in the nucleus plus some neutrons. ठीक है, तो लिथियम जो है एटॉमिक नंबर 3 रहता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है +3 रहता है, बैलेंस हो जाता है 3 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की वजह से. एलिमेंट 103 11 103 प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस में, और प्लस न्यूट्रॉन भी रहता है, ये भी बैलेंस हो जाता है 100 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की वजह से. नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ atom always equal the number of orbital electrons and is called atomic number of the element. In the simple planetary theory of atom, ठीक है, we imagine that these electrons move around the nucleus in circular orbits in such the same way as the planets orbits around the sun. Thus hydrogen and helium have 1 and 2 electrons respectively in the first orbits. The first orbit is then full. The next 8 atoms are lithium, beryllium, boron, carbons. ठीक है. नंबर पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस एटम के न्यूक्लियस में रहता है तो इक्वल रहता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, उसको होता है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट. स्ट्रक्चर जो है हाइड्रोजन हीलियम्स, ठीक है, इसमें दिखा रहा है न्यूक्लियस और उसका इलेक्ट्रॉन्स. इसमें भी हीलियम में 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बैलेंस होता है 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से. फिर यहाँ पे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है. ठीक है, तो इनमें हर किसी में प्रोटॉन्स है, और जितना प्रोटॉन है उतना ही सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, और ये इनका भी जितने भी न्यूक्लियस में चार्ज हो वो बैलेंस हो जाता है क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसीलिए. फिर द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव न्यूक्लियस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. एन इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस इज strongly attracted by nucleus and has low potential energy. An electron distant from the nucleus is less firmly held and has potential energy. नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो अट्रैक्टेड रहता है पॉजिटिव न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से. इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के नज़दीक रहता है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है न्यूक्लियस की वजह से. वो न्यूक्लियस जिसमें इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के नज़दीक रहता है, जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहता है न्यूक्लियस में, उसमें पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी कम रहता है. इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से बहुत दूर रहता है, ठीक है, उसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है. तो लो पोटेंशियल एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है. जो न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक है तो उनका पोटेंशियल एनर्जी कम है, और इलेक्ट्रॉन जो है जो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, ठीक है,
वो हाई पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड द बोहर थ्योरी। When atoms are heated or subjected to an electric discharge, they absorb energy which is subsequently emitted as radiation. For example, if sodium chloride is heated in the flame of a Bunsen burner, sodium atoms are produced which give rise to characteristic yellow flame colorations. एटम जो है, अभी ये है सब टॉपिक एटॉमिक स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन एटम और बोहर थ्योरी, ठीक है। जब भी एटम को हीट किया जाता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पे, तो ऑफकोर्स वो एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है, एक पर्टिकुलर रेडिएशन रिलीज़ करता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड, जब भी उसको फ्लेम में हीट करते हैं बंसन बर्नर के थ्रू, सोडियम एटम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक येलो फ्लेम कलरेशन देता है, क्योंकि वो सर्टेन रेडिएशन रिलीज़ करता है। देयर आर 2 लाइन इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ ऑफ 58 9.0 nanometer and 58 9.6 nanometer. Spectroscopy is a study of either the radiation absorbed or the radiation emitted. Atomic spectroscopy is an important technique for studying the energy and the arrangement of electron in atom. अभी जब भी NaCl सोडियम क्लोराइड को बंजन बर्नर में हीट किया जाता है, तो ऑफकोर्स येलो कलर आता है, येलो फ्लेम कलरेशन आता है। तब एक स्पेक्ट्रम आता है, उस स्पेक्ट्रम में से हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी सोडियम क्लोराइड येलो फ्लेम कलरेशन देता है, तब ये स्पेक्ट्रम में 2 लाइन फॉर्म होता है, ठीक है। और वो 2 लाइन जो है वेवलेंथ 589 नैनोमीटर और 589.6 नैनोमीटर पर रहता है, ठीक है। तो इस 2 वेवलेंथ पे 2 लाइन फॉर्म्स होते हैं। ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, और ये स्पेक्ट्रम जो स्टडी है ये हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में करना पड़ता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, यहाँ पे स्टडी होता है रेडिएशन जो ऑब्जॉर्ब हो गया है या फिर एमिट हुआ है, तो एमिटेड रेडिएशन या ऑब्जॉर्ब रेडिएशन का स्टडी करना पड़ता है स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, ठीक है। और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या रहता है, ये एक टेक्निक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, जहाँ पे एनर्जी और इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट को स्टडी करना पड़ता है जो एटम में है, ठीक है। If a discharge is passed through hydrogen gas H2 at a low pressure, some hydrogen atoms H are formed which emit light in the visible region. This light can be studied with a spectrometer and is found to comprise in a series of lines of different wavelength. 4 lines can be seen by eye, but many more are observed photographically in the ultraviolet region. The lines become increasingly slow together as the wavelength decreases until continuous, which wavelength in meter are related to the frequency nu in hertz cycle per second by the equations. अब जब ये डिस्चार्ज पास थ्रू होता है हाइड्रोजन गैस पे लो प्रेशर पे, तो हाइड्रोजन गैस कुछ हाइड्रोजन जो है एटम फॉर्म होता है, ठीक है। ये कुछ लाइट एमिट करता है विजिबल रीजन में, और ये जो लाइट जो स्टडी होता है स्पेक्ट्रोमीटर में, और उसमें बहुत सारे लाइंस ऑब्जर्व किए हैं अलग अलग वेवलेंथ पे। 4 लाइंस जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं नेकेड आई के थ्रू, ठीक है। और ये जो है फोटोग्राफिकली वेल ज़्यादा जो लाइन है, मतलब ज़्यादा जो लाइंस है वो फोटोग्राफिकली ऑब्जर्व होता है अल्ट्रावायलेट रीजन में। ये लाइन जो है ये बहुत क्लोज आता है एक दूसरे से, जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज़ होता है, जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज़ होता है तो ये लाइन बहुत क्लोज आते रहता है। और सबसे ज़्यादा और सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ किसका रहता है, ऑफकोर्स अल्ट्रावायलेट रेज का रहता है, ठीक है।
तो वेवलेंथ जो है ये SI यूनिट मीटर में रहता है, और फ्रीक्वेंसी जो है न्यू इसका SI यूनिट हर्ट्ज साइकिल पर सेकेंड में रहता है, और इसका इक्वेशंस ये है। इसके इक्वेशंस जो है वो ये है, ठीक है। ये है इसके इक्वेशंस। क्या है ये इक्वेशंस? न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, ठीक है। और ये है हमारा स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस जो है, ठीक है, वो लाइट ऑब्जर्व करता है और बाद में रेडिएशन रिलीज़ करता है। जब वो रेडिएशन रिलीज़ करता है तब स्पेक्ट्रम आता है। उस स्पेक्ट्रम में हम ये लाइन ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इस लाइन में और ये जो लाइन है, और ये जो लाइन है इसमें 4 लाइन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा है, फिर वेवलेंथ कम होता है, फिर और कम होता है, और भी कम होता है। तो मतलब हाईएस्ट वेवलेंथ में हम फर्स्ट हाईएस्ट वेवलेंथ में हम 4 लाइन ऑब्जर्व कर सकते हैं नेकेड आई के थ्रू। लेकिन जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होता है तो ये जो लाइन से एक दूसरे से क्लोज आता है, ठीक है। और ये जो वेवलेंथ है, लोवेस्ट वेवलेंथ है, ये रीजन अल्ट्रावायलेट रीजन है। यहाँ पे लाइन एक दूसरे से क्लोज आता है, ठीक है। सो where C is the velocity of light, speed of the light is 2.997910⁸ meter per second. मतलब अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इन स्पेक्ट्रोस्कोपी फ्रीक्वेंसी आर जनरली एक्सप्रेस एज द वेव नंबर म्यू बार, वेयर म्यू बार इज 1/λ m per m. In 1885, Balmer showed that the wave number of any line in visible spectrum of atomic hydrogen would be given by simple empirical formula. Balmer ने दिखाया था कि वेव नंबर जो है कोई भी लाइन का जो विजिबल स्पेक्ट्रम में है एटॉमिक हाइड्रोजन का, वो एक सिंपलेस्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला देता है, जो ये है। वेव नंबर म्यू बार इक्वल टू R इन ब्रैकेट 1/2² माइनस 1/n² होता है, जहाँ पे R रिडबर्ग कांस्टेंट रहता है, n का वैल्यू है 345, ठीक है। लाइन ऑब्जर्व इन द विजिबल रीजन आर कॉल्ड बैल्मर सीरीज। जो 4 लाइन, ठीक है, जो हम नेकेड आई के थ्रू देख सकते हैं और ये विजिबल रीजन में, उसे बैल्मर सीरीज कहते हैं, ठीक है। इसे बैल्मर सीरीज कहते हैं। ये जो है हम जो 4 लाइन देख सकते हैं, ये विजिबल रीजन में है और इसको बैल्मर सीरीज कहते हैं, ठीक है। फिर वैसे ही सिमिलरली बहुत सारे लाइन अलग अलग रीजन्स में रहते हैं, और उसके भी इक्वेशंस है, जैसे कि लाइमन का म्यू बार इक्वल टू R इन ब्रैकेट 1/1² माइनस 1/n², n इज 2 3 4 5. बैल्मर्स म्यू बार इक्वल टू R 1/2² माइनस 1/n², n इज 3 4 5 6. और यहाँ पे दिखाया गया है लाइमन सीरीज जो अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है, बैल्मर सीरीज जो विजिबल या फिर अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है, पैस्टन सीरीज इंफ्रारेड में होता है, ब्रैकेट सीरीज इंफ्रारेड में होता है, पीफन सीरीज इंफ्रारेड में होता है, हमशायर सीरीज इंफ्रारेड में होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी लाइंस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम्स में रहता है तो उन के सीरीज़ को अलग अलग नाम दिया गया है।
अगर लाइंस जो है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में ऑब्जर्व करते हैं तो उसको लाइमन सीरीज़ कहते हैं। अगर लाइंस जो है विजिबल या फिर या अल्ट्रा वायलेट रीजन में दिखता है, ठीक है, वो बैल्मर सीरीज़ होता है। फॉर एग्जांपल जो हमने हाइड्रोजन देखा है वो असल में हाईएस्ट वेवलेंथ में था, मतलब विजिबल रीजन में हमने 4 लाइन ऑब्जर्व किया था, तो वो था बैल्मर सीरीज़, ठीक है, किसका, हाइड्रोजन एटम्स का। पास्चन सीरीज़ में लाइन जो है ऑब्जर्व होते हैं इंफ्रारेड में, फिर ब्रैकेट, पीफन सीरीज़, हमशायर सीरीज़, ये सभी जो है उसमें जो लाइंस है वो इंफ्रारेड रीजन में रहता है। और इंफ्रारेड रीजन में जो वेवलेंथ है इज़ मच लॉन्गर देन विजिबल रीजन, and wavelength of visible region is much longer than ultraviolet region. Okay, यहाँ पे पास्चर ब्रैकेट पी फेंड है, इस न्यू बार इक्वल टू r 1/3 square minus 1/n square n is 4 5 6 7 bracket is new bar equal to r 1/4 square minus 1/n square n is 4 5 6 7 8 p fun is mu bar equal to r 1/5 square minus 1/n square n is 6 7 8 9, ठीक है। हम आगे भी इस चैप्टर के बारे में समझेंगे और लर्न करेंगे आगे के वीडियोस में। टिल देन, see you later guys, and please subscribe to my channel, and if you have comments or queries, please ask your queries in the comment box, and if you like this channel, please share to your friends and acquaintances. So have a nice day.